پاکستان کے دوست ممالک کی $5 ارب سے زائد کی فراہمی کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق متبادل ذرائع سے رقم کا بندوبست ہونے کے بعد پاکستان نے UAE کو $2 ارب ادائیگی کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو جون تک مجموعی طور پر $4.8 ارب کی ادائیگی کرنا ہے۔ پاکستان نے ان ادائیگیوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ پاکستان کو مجموعی طور پر UAE کو $3.5 ارب کے 3 مختلف فارم کی ادائیگی ہونا ہے۔ یورو بانڈ 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد میچور ہو گیا۔ $1.3 ارب کی یورو بانڈ کی ادائیگی اسی ہفتے ہونا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے دوست ممالک کی $5 ارب سے زائد کی فراہمی کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق متبادل ذرائع سے رقم کا بندوبست ہونے کے بعد پاکستان نے UAE کو $2 ارب ادائیگی کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو جون تک مجموعی طور پر $4.8 ارب کی ادائیگیاں کرنا ہے۔ پاکستان نے ان ادائیگیوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ پاکستان کو مجموعی طور پر UAE کو $3.5 ارب کے 3 مختلف فارم کی ادائیگی ہونا ہے۔ یورو بانڈ 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد میچور ہو گیا۔ $1.3 ارب کے یورو بانڈ کی ادائیگی اسی ہفتے ہونا ہے۔ اس متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ارشاد انصاری سے۔ جی ارشاد، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، پاکستان نے جو ہے وہ UAE کو پیسے واپس کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، اور اس کے تحت مختلف حلقوں میں جو ہے یہ چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ پاکستان کے شاید ایکسٹرنل فرنٹ پہ جو ہے وہ فائنینسنگ کا پرابلم آئے گا اور جو فسکل جو خلا ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس پہ وزارت خزانہ کے حکام سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے $5 ارب کا اپنے دوست ممالک سے پہلے بندوبست کیا ہے، اور اس کے بعد UAE کو اور اس کے علاوہ یورو بانڈ جو میچور ہو چکا ہے اس کی ادائیگیوں کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا تھا اور فیصلہ بھی کیا تھا، اور اس کے تحت $5 ارب جو ہے وہ پاکستان کو ملیں گے دوست ممالک کو۔ لیکن پاکستان نے جون تک جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ $4.8 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں، اس میں سے $3.5 ارب جو ہے وہ UAE کے، اور اس میں $2 ارب وہ شامل ہیں جو سیف ڈپازٹ کے طور پہ پاکستان کے پاس رکھے ہوئے تھے، اور اس پہ 6% جو ہے وہ انٹرسٹ پے کرنا تھا۔ اس کے علاوہ $1.3 ارب کے یورو بانڈ ہے جو ابھی میچور ہو چکا ہے، اور اس کی ادائیگی اسی ہفتے جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اپنے فائنینسنگ کا ارینجمنٹ کر کے تو اس کے بعد یہ اناؤنس کیا گیا تھا، تو اس لیے پاکستان کے ایکسٹرنل فرنٹ پہ یا بیلنس آف پیمنٹ کے معاملے میں جو ہے کسی قسم کا دباؤ یا فسکل جو ہے وہ خلا نہیں آئے گا، اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ انٹیکٹ رہیں گے، اور بلکہ جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور جو ایکسپورٹ جو ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ IMF کی طرف سے بھی جو ہے اسٹاف سطح کے معاہدے ہو چکا ہے، اور اگلے مہینے جو ہے وہ اس کا اجلاس بلایا گیا ایگزیکٹو بورڈ کا، اور اس میں پاکستان کے لیے $1 ارب اور $20 کروڑ کی جو ہے وہ قسط اگلی جو ہے ادائیگیوں کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔ ارشاد انصاری اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ امریکہ اور ایران کو جنگ ختم کرنے کا منصوبہ موصول ہو گیا۔ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے لیے جامع منصوبہ پیش کیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے جنگ بندی منصوبے پر دونوں ممالک غور کر رہے ہیں۔ پاکستان کا پیش کردہ فریم ورک 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور پھر مستقل معاہدہ ہوگا۔ جنگ بندی کے فوری نفاذ اور آبِ ہرمز کو کھولنے کی تجویز شامل۔ پاکستان اس عمل میں واحد رابطہ چینل کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران کو جنگ ختم کرنے کا منصوبہ موصول ہو گیا۔ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے لیے جامع منصوبہ پیش کیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے جنگ بندی منصوبے پر دونوں ممالک غور کر رہے ہیں۔ پاکستان کا پیش کردہ فریم ورک 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور پھر مستقل معاہدہ ہوگا۔ جنگ بندی کے فوری نفاذ اور آبِ ہرمز کو کھولنے کی تجویز شامل۔ پاکستان اس عمل میں واحد رابطہ چینل کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کو جنگ ختم کرنے کا منصوبہ موصول ہو گیا۔ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے لیے جامع منصوبہ پیش کیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی منصوبے پر دونوں ممالک غور کر رہے ہیں، اور پاکستان کا پیش کردہ فریم ورک 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور پھر مستقل معاہدہ ہوگا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ، ایران اور علاقائی ثالثوں کے گروپ کی ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی شرائط پر بات چیت جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اگلے 48 گھنٹے میں کسی جزوی معاہدے تک پہنچنے کا امکان کم ہے۔ یہ آخری کوشش جنگ میں اضافے کو روکنے کا واحد موقع ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ثالث 2 مرحلوں پر مشتمل ڈیل کی شرائط پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی ہوگی۔ اس دوران جنگ کے مستقل خاتمے پر بات ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے دوسرا مرحلے کے خاتمے پر ایک معاہدہ ہوگا۔
ईरानी हमलों में जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की तबाही के बाद सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और गालियों पर उतर आए। ट्रंप ने ईरान को नामुनासिब अल्फाज में आबनाए हुर्मस खोलने की धमकी दे डाली। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मस खोल दे वरना ईरानी पावर प्लांट्स और पुल एक साथ निशाना बनाए जाएंगे और ईरानी शहरियों को जहन्नुम जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। फॉक्स न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, पीर तक ईरान के साथ मुआहिदा तय पा सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान में तेजी से सब कुछ आएगा और ईरानी तेल पर कब्जा कर लिया जाएगा। सदर ट्रंप ने मुआहिदे के लिए मंगल की रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक डेडलाइन मुकर्रर कर दी। एक्सियोस और वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहिदे का अच्छा मौका है। अगर मुआहिदा ना हुआ तो मुल्क भर के तमाम पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर दिए जाएंगे। ईरानी हुकूमत के मुखालिफ शहरी इन हमलों की हिमायत करेंगे। ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के सीनियर मुशीर अली अकबर वलाइसी ने कहा, मुज़ाहमती महाज की मुत्तहिदा कमान बाबुल मंदिब को भी आबनाए हुर्मस की तरह देखती है। व्हाइट हाउस दोबारा गलती ना दोहराए। आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव एक ही बार से मफलूज हो सकता है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो मशरक़ वस्ता में अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाएंगे। ईरानी अदलिया की जानिब से कहा गया है कि ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुके हैं। बुखलाहट में अमरीकी सदर ट्रंप घटिया ज़बान के इस्तेमाल पर उतर आए। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद कुर्बान करके दूसरों को धमकाने वाला ट्रंप पत्थर के दौर में फंसा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर जिंदा होता तो ट्रंप की धमकी पर खामोश न रहता। ट्रंप खित्ते को ना ख़त्म होने वाली जंग में घसीटना चाहते हैं। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने का अमरीकी सदर ट्रंप के मवाख़ज़े का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और रूसी हममंसब में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अमरीका को अल्टीमेटम के बजाय मुज़ाकराती रास्ता अपनाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और रूसी हममंसब में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बरसात, इसराइली शहरों में तबाही, हर तरफ आग लग गई। दमना में इसराइली पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमला। हिफा में मिसाइल हमले से 7 मंजिला इमारत ज़मीन बोस। तबाह इमारत के मलबे से 2 लाशें बरामद। 2 की तलाश जारी है। इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल से ताज़ा हमला हुआ। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात, इसराइली शहरों में तबाही, हर तरफ आग लग गई। दमना में इसराइली पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमला। हिफा में मिसाइल हमले से 7 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE में बंदरगाह पर हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के ज़ख्मी होने पर इज़हार तशवीश। कहा, अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए अमाराती हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE में बंदरगाह पर हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के ज़ख्मी होने पर इज़हार तशवीश। कहा, अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए अमाराती हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर नए हमले। तेहरान समेत 12 शहरों में बमबारी। तेहरान के जनूब मशरक़ी रिहायशी इलाके पर हमले में 13 अफराद शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। तेहरान की एक और साइंस यूनिवर्सिटी पर भी हमला। क़ौम शहर में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 5 अफराद शहीद। तेहरान में गैस तनसीब को भी निशाना बनाया। ईरान पर हमले में ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद शहीद हो गए। और लेबनान में बैरूत के इलाकों में इसराइली बमबारी में 8 अफराद शहीद और 55 ज़ख्मी हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स का भारत की इसराइल नवाज पॉलिसी जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाने का इंकशाफ। अमरीकी महकमा इंसाफ की तहकीकात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की इसराइल की जानिब झुकाव की पॉलिसी खुफिया करप्ट नेटवर्क के असर रसूख के तहत तश्कील पाए। जेफरी एप्स्टीन ने खुद को ट्रंप इंतजामिया के बाअसर अफराद के तौर पर जाहिर किया। भारतीय कारोबारी शख्सियत अनिल अंबानी को दिफाई और सफारती मामलात पर मशवरे दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का भारत की इसराइल नवाज पॉलिसी जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाने का इंकशाफ। जेफरी एप्स्टीन ने खुद को ट्रंप की इंतजामिया के बाअसर अंदरूनी फर्द के तौर पर पेश करते हुए भारतीय कारोबारी शख्सियत अनिल अंबानी को दिफाई और सिफारती मामलात पर मशवरे दिए। बदनाम जमाना जेफरी एप्स्टीन ने ही मोदी सरकार को इसराइल पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक झुकाव की तजवीज़ दी, जिसमें $2 अरब के इस्लाह और इंटेलिजेंस खरीदारी में इजाफा शामिल था ताकि व्हाइट हाउस की हिमायत हासिल की जा सके। 2016 के राफेल तैयारे मुआहिदे को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, जहां अंबानी ग्रुप को मुख्तलिफ मंसूबों की जिम्मेदारी दी गई।
एप्स्टीन ट्रम्प काबीना में तकरीरों और खारजा पॉलिसी में तब्दीलियों से मुतालिक खुफिया मालूमात वक्त से पहले फराहम करता रहा। एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को अमरीकी असरो रसूख के अहम हलकों तक रसाई दी, जिनमें स्टीव बैनन और टॉम बेरिक जैसे नाम शामिल हैं। अंबानी ने मुबैना तौर पर जेरेड कुशनर से मुलाकातों के लिए भी इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवेज़ की कारकर्दगी, जारी इस्लाहात और मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर रेलवेज़ ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग दी। मुल्क भर में चलने वाली तमाम ऑपरेशनल ट्रेन के किराए में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। पंजाब के कैंसर अस्पताल की तामीर जंगी बुनियादों पर तेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। वज़ीर आला की 3 शिफ्ट में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। अस्पताल में 415 असामियों की मंजूरी, अगले हफ्ते इश्तिहार दिया जाएगा। अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म। हुकूमत पंजाब की फ्री बस सर्विस से फ़ायदा उठाने में रावलपिंडी सरफहरिस्त। रेड मेट्रो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफ़र फ्री करने से रोज़ाना आवाम का शदीद रश। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साले मुगल से। अपडेट कीजिएगा साले। बिल्कुल, जैसा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब की आवाम के लिए एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद जो पंजाब हुकूमत के ज़रिए असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर आवाम के लिए सफ़र फ्री कर दिया गया था। इसमें जो मुसाफिरों को सहूलत दी जा रही है कि शनाख्ती कार्ड देखकर जो बड़े उम्र के जो मुसाफिर है, शहरी है, उनको शनाख्ती कार्ड देखकर, और जो स्टूडेंट है उनको स्टूडेंट कार्ड देखकर फ्री सफ़र की सहूलत दी जा रही है। अगर क्या 2 दिन जो से हफ्ता और एतवार जो तातीलात थी और ऑफिस वगैरह और स्कूल कॉलेज वगैरह जो से वो बंद थे, उसके बावजूद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस जो रेड मेट्रो बस कहलाती है, इसके ऊपर जो राइडरशिप है वो 1,29,000 से तजावज कर गई है। पहले ये तकरीबन 1 लाख से 10,000 इसके करीब आती थी। इसी तरह जो ग्रीन बस सर्विस है जो फीडर रूट चलते हैं उसके ऊपर ये राइडरशिप 40,000 से तजावज कर गई है। आज जैसा कि वर्किंग डे है, 4 दिन जो है वो दफातर और स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, तो मेट्रो जो स्टेशन है और मेट्रो बसें हैं खचा खच भरी हुई है। शहरियों ने बहुत शुक्रिया साले मुगल अपडेट करने के लिए। HBL PSL का पहला मरहला खत्म। आज लाहौर में आखिरी मैच होगा। मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा रावलपिंडी से होगा। अगला मरहला 8 अप्रैल से कराची में शुरू होगा। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।